Good morning to all. We feel honored to have with us the Honorable Chief Guest, Shri Sandesh Nayak, Commissioner, College Education, Rajasthan, Jaipur. Respected Principal, Ma'am, JDB Government Girls College, Kota, Dr. Anita Kothari. Our guest speaker, Member Secretary, DLQSC, Dr. Satish Saraswat. Chief Advisor, Mrs. Madhu Khanna, Convener of the seminar, Dr. Suchita Jain, Coordinator, Dr. Vijay Devda, Organizing Secretary, Dr. Poonam Jaiswal, all faculty members and dear participants. I feel privileged to welcome you all on behalf of JDB Government Girls College, Kota, to the one-day national seminar on NET accreditation process, opportunity and challenges, organized by NET and IQSC, JDB Government Girls College, Kota. Now I request to Principal Ma'am Dr. Anita Kothari to her welcome speech. Good morning. On behalf of the faculty members of JDB Government Girls College, Kota, I welcome you all in this national e-webinar on NAC accreditation process, opportunities and challenges held under the aegis of NAC and IQAC. I feel greatly privileged and honored to welcome our distinguished chief guest, Shri Sandesh Nayak, Commissioner, College Education, Jaipur, eminent subject specialist speaker, Dr. Pratibha Singh, Deputy Advisor, NAC, New Delhi. I would like to extend my heartiest welcome to our familiar speakers from Commissionerate, Dr. B.L. Sharma, Joint Director and Member Secretary, SLQAC, Dr. Vimlesh Soni, Project Director, RUSA, Dr. Shruti Gupta, Assistant Project Director, Dr. Sanjay Bhargav, Assistant Director, Kota, and all the DLQSC nodal principals and other participants. As we all are aware of the fact that NAC accreditation is now mandatory for all higher educational institutions for receiving grants and NAC grade is important for colleges as far as quality development enhancement is concerned. So keeping this in mind, this webinar is being organized to acquaint us all with the process, at the same time to highlight the problem areas and remove all our doubts and queries on this subject. I am sure that this webinar will turn to be very enlightening and fruitful. In the end, I would like to thank all our esteemed guests who have spared their valuable time for this. Thanks, and I'm sorry for this technical issues, and that is why we could begin this program. It was belated by some time. Thank you. Thank you, Principal Ma'am. Now I would like to invite Dr. Suchita Jain to give the outline of the seminar to our dear participants. Very good morning to all. I feel great pleasure to welcome you all. Honorable, respected Chief Guest, Shri Sandesh Nayak, Commissioner, College Education, Rajasthan, Jaipur, Dr. Pratibha Singh, our keynote speaker from NAC, Delhi, Dr. B.L. Sharma ji, Joint Director and Member Secretary, SLQAC, Rajasthan, Jaipur, Principal Madam, Dr. Anita Kothari, Dr. Vimlesh Soni, Member, Deputy Project Director, Dr. Shruti Gupta, Assistant Director, RUSA, CCE Jaipur, Dr. Satish Saraswat sir,
our member secretary DLQAC, Dr. Madhu Khanna, Dr. Madhu Khanna, our chief advisor, Dr. Sanjay Bhargav, our assistant director, and dear all participants. I feel great pleasure to welcome you all on behalf of the organizing committee on this occasion of National E-Seminar organized by NAC committee and IQAC committee of Janki Devi Bajaj Government Girls College, Kota. National Assessment and Accreditation Council has a very good initiative to assess and improve the quality of in the higher education institutions. Revised accreditation framework has been now launched by NAC, keeping in mind the idea of searching solutions for the problems faced by the higher education institutions for the accreditation process, and new guideline or framework of revised accreditation framework by NAC. We have organized this seminar on opportunities and challenges for higher education institutions. We are very lucky to have Honorable Commissioner Sir as our chief guest in the inaugural session to grace the occasion. Today's outline of the program is as follows. Inaugural address by Honorable Commissioner Sir. And in the session 1, keynote speaker, Dr. Pratibha Singh Madam, revised accreditation framework and problems and solutions. Session 2, problems faced by HEIs during accreditation and assistance from Commissioner College Education, Rajasthan, Jaipur, Dr. BL Sharma, Joint Director Sir, Member Secretary SLQAC. Session 3, best practices and distinctive practices of the institutions and how to achieve good score in the accreditation, Dr. Vimlesh Soni Sir. And session 4, status of NAC in Rajasthan, SSR preparation and general problems by Dr. Shruti Gupta Madam. I welcome you all in this seminar, and I hope the seminar will be fruitful and enlightening for us to solve our problems. We are able to connect all higher education institutions from Rajasthan on this platform to have guidance from our eminent speakers and to upgrade knowledge regarding the accreditation process and quality management in HEIs as per revised accreditation framework. Hope the seminar will be a grand success, solving our queries and problems by eminent speakers. Thank you. Good morning. I, Dr. Satish Saraswat, now would like to invite Honorable Commissioner College Education, Mr. Sandesh Nayak, who is innovative, person and a perfect blend of an honest officer and a dynamic administrator. Mr. Nayak is a generous soul who is wholeheartedly devoted to the betterment of the society. Being a technocrat, he has several plans to develop college education with modern ideas. I wish and pray that our college education department reach heights of success under his able and visionary leadership. I, on behalf of entire college, feel blessed to have Mr. Nayak with us on this auspicious day. I hereby now invite Mr. Sandesh Nayak sir to kindly take over the mic and say a few words. Sir. Dr. Pratibha Singh ji, Dr. Deputy Advisor NAC, Dr. BL Sharma ji. सुनाई दे रहा है सरस्वत जी? सुनाई दे रहा है? आ रही है सर, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, डेप्टी एडवाइजर नैक, डॉक्टर BL शर्मा जी, डॉक्टर विमलेश, डॉक्टर श्रुति गुप्ता जी, डॉक्टर संजय AD हमारा कोटा के, डॉक्टर सतीश सारस्वत और डॉक्टर अनीता कोठारी प्रिंसिपल and all teachers, very good morning. I'm very happy to inaugurate this national level workshop
which has been organized to guide our colleges to ensure the quality of higher education. At the outset, I हाँ मैं तो जोड़ के अच्छा शर्मा साहब बोल रहे हैं क्या? Taking this initiative at a high time when emphasis on the quality is very much. कोई बात नहीं, YouTube पे जुड़ जाएं आप सर. ठीक. We in Rajasthan cater around 11 lakh and more students. वो क्या सारे फोन भी and we could increase our horizontal reach of college education, but quality on education yet to come on our high priority. This will only happen with our understanding of what we lack and what we have. Accreditation process helps in assessing this. The principals should become the change leaders in their institution. They should promote use of technology among the teachers and students, and also improve the quality of education by bringing bringing changes at every level. I hope this seminar will immensely help all the participants. I once again greet all the teachers and all the principals who are participating in this webinar. I congratulate the efforts of the organizers. Thank you very much. This opportunity to introduce our keynote speaker, Dr. Pratibha Singh, madam. She is engineer by training and GET scholarship recipient. She has teaching experience of 15 years. She has guided research scholars and published more than 35 articles in journals of national and international repute. She has published 2 books. She joined NAAC in 2017. She is member of various internal committees such as DVV, CWG, and ICT. She is member of Soft Computing Society and Indian Unit of Pattern Recognition, member of Core Working Group for Grading and NCTE for Developing Performa for Assessment and Grading. Now working as in charge of newly opened NAAC office at New Delhi since 2018. I invite our eminent speaker, keynote speaker, Madam Pratibha Singh, to deliver her talk and guide us. Welcome, ma'am. Okay, thank you, sir. Namaskar. Today I am here to talk something about the NAAC accreditation on the request of JD College for Girls, Kota. So, on behalf of entire NAAC family, I welcome you, all the participants, Shri Sandesh Nayak ji, Commissioner Higher Education, Government of Rajasthan, the entire Commissionerate, Dr. Vimal Soni ji, Shruti ji, and Principal Madam of this esteemed organization, and the faculty members, and all the participants who have joined from different parts of the country to listen to know about the NAAC process. So I would be basically talking about the process of assessment and accreditation and what is the kind of support NAAC can provide in order to support the institutions specifically to Rajasthan and other parts of the country. So my talk is about how to go about NAAC, the entire process of assessment and accreditation. So before going to that, let me share the slide. Welcome, ma'am. So beginning with the revised accreditation framework. Revised accreditation framework is a framework for the assessment and accreditation of the institutions of higher learning. So basically, this framework has came into existence since July 2017, and there are certain highlights about this revised accreditation framework, which I am going to talk about, and the modalities associated with this framework. So the outlines of today's talk is, I would be talking about the quality indicator framework. So what are the parameters that are involved with the quality measurement for the institution? I would be first discussing about that. Then the process flow associated with the assessment and accreditation. So starting from IIQA, which is the first step. Then we have a self-study report submission, which is the second step. Then the data validation and verification, and then the student satisfaction survey and peer team visit management. So these are the various process steps involved for the assessment and accreditation. This is the vision of NAAC. The basic vision is to make the quality the defining element of higher education institutions.
higher education in the India through a combination of self and external quality evaluation and promotion and sustenance initiatives. So basically, this is the main motive. हम लोग क्या करते हैं? Our main objective is to promote the self evaluation. तो क्वालिटी को डिफाइनिंग एलिमेंट बनाना, इंस्टीट्यूशंस के जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी उनके लिए एक डिफाइनिंग एलिमेंट बन जाए, इस दिशा में NAAC काम करता है। और इसके लिए जो हमारा काम है वो वी आर एन एक्सटर्नल क्वालिटी इवैल्यूएशन एजेंसी। और देखिए एक्सटर्नल क्वालिटी इवैल्यूएशन जो है ये NAAC का काम है। और इस एक्सटर्नल क्वालिटी इवैल्यूएशन को करने के लिए हमारे पास एक प्रीसेट बेंचमार्क्स होते हैं, हमारे कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं। और इंस्टीट्यूशन से हम ये उम्मीद करते हैं कि उन पैरामीटर्स के बारे में अच्छी तरह से जानें, उसमें जो भी डेटा रिक्वायरमेंट है उसके बारे में समझें, और वो किस तरह से हम उसको अटेन कर सकते हैं वो जाने। तो ये बेसिकली हम चाहते हैं। और साथ में देखिए इसमें हम ये प्रमोट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन स्वयं का मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहे। तो इसी विजन के तहत हमारे कुछ मिशन स्टेटमेंट्स हैं। सो फर्स्ट मिशन स्टेटमेंट इज टू अरेंज फॉर द पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन और यूनिट्स thereof और स्पेसिफिक एकेडमिक प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स। सो बेसिकली हम लोग जो है पीरियोडिक असेसमेंट करते हैं, 5 साल में एक बार हम असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन करते हैं। और बेसिकली NAAC एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इंस्टीट्यूशन को यूनिट कंसिडर किया जाता है भारतवर्ष में। दूसरी तरह की असेसमेंट एक्रेडिटेशन बॉडीज भी हैं जो कि प्रोग्राम इवैल्यूएशन करती हैं, परंतु NAAC जो है, NAAC इज dedicated for the institutional accreditation, and every 5 years the institution is supposed to come for the assessment and accreditation by NAAC again for the renewal process. The second statement of our mission is to stimulate the academic environment for the promotion of quality of teaching, learning, research in higher education institutions. So basically we stimulate the academic environment. The third mission statement is to encourage the self-evaluation, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी एंड इनोवेशन। तो ये सारी चीजें जो है आपकी जो रिपोर्ट बनती है NAAC को, जो आप रिपोर्ट सबमिट करती हैं, उसमें ये सभी चीजें जो है रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। और सेल्फ इवैल्यूएशन, जैसे हर वर्ष अपना कोई गोल आपने बना लिया और ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया कि इस वर्ष हमें ये अटेन करना है, उसका इवैल्यूएशन आप स्वयं करें, मूल्यांकन अपने द्वारा करें। और आसपास में यदि आपके कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स अवेलेबल है तो उनके द्वारा भी अपना जो है ये मूल्यांकन करवाते रहें समय समय पर। और अकाउंटेबिलिटी, जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी को भी प्रमोट करते हैं हम लोग। और इनोवेशन को, कि आप जो है संस्थान लेवल पे किस तरह का आपकी जो भी लोकल समस्याएं हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें हम इनोवेशन ढूंढने के, आपने कोई सोल्यूशन ऐसा लिया है जो कि इनोवेशन की तरफ हमें आपको डायरेक्ट करता है, इस तरह के हमारे प्रयास रहते हैं। वो सभी चीजें जो हम आपकी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिप्रेजेंट हों। इसके अलावा टू अंडरटेक द क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडी, सो बेसिकली वी अंडरटेक द क्वालिटी रिलेटेड रिसर्च स्टडी। यदि किसी स्टेट में असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन कम है तो उसकी क्या वजह है, किस तरह के चैलेंजेस स्टेट और द इंस्टीट्यूशंस जो है वो फेस कर रहे हैं, इस तरह की कुछ रिसर्च स्टडीज हम कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा NAAC समय समय पर बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए भी एफर्ट लगाता है। जो भी संस्थान हमें भारतवर्ष में ऐसे दिखते हैं कि ये जो संस्थान है ये अपने लेवल पे कुछ अलग काम कर रहे हैं, इनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो सभी को पता होना चाहिए, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस की दिशा में भी हम जो है रेगुलर इंटरवल पर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं। तो आप पब्लिकेशन के माध्यम से उन रिपोर्ट्स पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इस तरह के जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह का आज प्रोग्राम ये कॉलेज के माध्यम से आप सुन पा रहे हैं, इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं और NAAC इसको सपोर्ट करता है। या तो 2 तरह के प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं, एक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस ग्रांट होती है जो कि NAAC देता है। तो सभी संस्थान जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, प्राइवेट भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ग्रांट के लिए जो गाइडलाइंस है उनको आप अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें और उसमें सेमिनार ग्रांट में वो आप अप्लाई करके और इसको जो है ग्रांट रिसीव करके क्वालिटी रिलेटेड कुछ जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाना चाहते हैं, जो भी आप यहाँ पर अवेयरनेस एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं वो इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हम एकेडमिक सपोर्ट भी देते हैं, जैसे
कुछ ऑफिशियल्स जो हैं इन प्रोग्राम्स में अपना पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए जो है कोलैबोरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कोलैबोरेशन को इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी हम प्रमोट करते हैं। वी एज एन असेसमेंट एक्रेडिटेशन बॉडी ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे हमारे कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अदर क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो क्वालिटी को असेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ हमारे कोलैबोरेशंस हैं, ताकि उनकी जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनके जो भी अच्छी चीजें हैं, वो हम अपने फ्रेमवर्क में ला पाएं। इसी तरह से हम कॉलेजेस से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अन्य संस्थानों के साथ में कोलैबोरेट हुए। ये कोलैबोरेशन एमओयू के माध्यम से हो सकता है। ये कोलैबोरेशन का फायदा क्या होता है कि जो भी उनकी अच्छी चीजें हैं वो अपने संस्थान में आप अपना पाए। तो ये इस तरह से कोलैबोरेशन को भी हम प्रमोट करते हैं। सो द अगली जो मैं बात कहने जा रही हूँ, दिस इज अबाउट द NAAC असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस। तो NAAC की असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन प्रोसेस जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से स्टार्ट होती है। तो हमारे पास NAAC का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 6 years of existence or 2 batches pass out, whichever is earlier, is the institution is eligible to apply for NAAC only if they satisfy this condition. The second requirement is not an eligibility criteria, but it is a requirement for assessment and accreditation, is the last 5 years data. आपको पिछले 5 वर्षों का डेटा देना होता है, और यदि आप डेटा दे रहे हैं तो उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमें प्रोवाइड करें। और इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन इससे संबंधित है वो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है www.naac.gov.in। इस पर आप जाकर जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको देख सकते हैं। और जो वैलिडिटी है, यदि आपको एक बार एक्रेडिटेशन मिल गया है तो उस डेट से वैलिडिटी आपकी 5 वर्षों की होती है, और अंतिम 6 महीनों के अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप रिन्यूअल की जो प्रक्रिया है दोबारा प्रारंभ कर दें। सो विद इन लास्ट 6 months ऑफ योर वैलिडिटी पीरियड यू नीड टू अप्लाई फॉर री-एक्रेडिटेशन। तो ये जो चीजें मैंने आपको कहीं वही लिखी हुई हैं, डेटा, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और मैनुअल्स और टेम्पलेट्स, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप NAAC की वेबसाइट पर देख सकते हैं और उनको पढ़ के और अपनी तैयारियों को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, जिसको कि अब हम रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क कहते हैं, ये इस फ्रेमवर्क को समझना जरूरी है। तो ये फ्रेमवर्क बेसिकली क्राइटेरिया, की इंडिकेटर्स और मैट्रिक्स से मिलकर बना हुआ है। ये जो फ्रेमवर्क है ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फ्रेमवर्क में पिछले 5 वर्षों का डेटा मांगा जाता है, और ये जो डेटा है ये कुछ क्वेश्चंस के अंतर्गत मांगा जाता है। आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और उनमें 5 वर्षों के डेटा को आपको देना होता है। तो जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इस तरह के 2 सेपरेट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। क्वांटिटेटिव लगभग 70% होता है और क्वालिटेटिव जो होता है वो लगभग 30% होता है। तो इसमें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जो भी डेटा आप देते हैं इसको हम थर्ड पार्टी से इवैल्यूएट करवाते हैं। क्वांटिटेटिव पार्ट का जो इवैल्यूएशन है वो थर्ड पार्टी एजेंसी करती है। क्वालिटेटिव पार्ट का जो इवैल्यूएशन है, जिसमें कि हम आपके संस्थान में किस तरह की प्रैक्टिसेस या प्रोसेसेस अडॉप्ट की जा रही हैं, उसको हम पीयर्स के माध्यम से, असेसर्स जिसको बोलते हैं, NAAC के असेसर्स जो है आपकी क्वालिटेटिव क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन ऑन साइट करते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, हमारी जो पूरी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन की प्रक्रिया है पोर्टल के माध्यम से होती है। इसलिए हमने इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीटली ऑटोमेटेड एंड टू एंड सोल्यूशन कहा है। तो आपको सभी कुछ पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर जमा करना होता है। जो भी क्वेरीज आपको रिसीव होती हैं वो भी पोर्टल के माध्यम से मिलती हैं। जो कम्युनिकेशन आपको यहाँ प्राप्त होता है वो भी पोर्टल जेनरेटेड है। ऑटो जेनरेटेड ईमेल, ऑटो जेनरेटेड मैसेजेस आपको मोबाइल पर मिलते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस जो है ये कंप्लीटली जो है फिक्स्ड टाइमलाइन फॉलो करती है। जैसे कि SSR सबमिट करने के लिए 45 दिनों का समय आपको दिया जाता है। DVV ने यदि डेटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन ने आपसे यदि कोई क्वेरी पूछी है तो 15 दिनों के अंदर आपको क्वेरी का रिस्पांस देना होता है। इसी तरह से स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे लगभग 1 महीने के अंदर में पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये पूरी जो प्रक्रिया है ये फिक्स्ड टाइमलाइन को फॉलो करती है। अब जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क किस तरह से बना है, जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक फ्रेमवर्क में 7 तरह के क्राइटेरिया है
और फ्रेमवर्क जो है यूनिवर्सिटीज के लिए अलग होगा, ऑटोनॉमस कॉलेजेस के लिए फ्रेमवर्क अलग होगा और एफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के लिए ये फ्रेमवर्क अलग होगा। एफिलिएटेड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में भी यूजी और पीजी के लिए अलग अलग स्कीम है हमारे पोर्टल में, और जब आप IIQA भरते हैं उस समय पर आपको ये स्कीम डिसाइड करनी होती है कि आप किस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हैं। तो कोई संस्थान यदि एक भी पीजी प्रोग्राम रन कर रहा है तो उसको हम पीजी कॉलेज कहेंगे। कोई संस्थान अगर सारे यूजी कोर्सेज रन कर रहा है तो हम उसको यूजी कॉलेज कहेंगे। तो इस तरह से हम स्कीम्स में आपको IIQA के दौरान ये पूछ लेते हैं कि यू बिलोंग टू विच कैटेगरी, आइदर योर यूनिवर्सिटी और ऑटोनॉमस कॉलेज और एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज। उस तरह से आपको उस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं। तो क्राइटेरिया को देखिए, क्राइटेरिया को की इंडिकेटर्स और की इंडिकेटर्स को फर्दर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में ब्रेक किया गया है और इन मैट्रिक्स को क्वेश्चंस की तरह समझा जा सकता है। टोटल 115 क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी में मिलेंगे, ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आपको 107 क्वेश्चंस मिलेंगे और एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको 93 और 96 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसी को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करा गया है। क्राइटेरिया कौन कौन से हैं, इनका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी के लिए है ये स्कीम, इसी तरह की स्कीम कॉलेजेस के लिए भी आपको दिखेगी, आप देख सकते हैं मैनुअल्स में ये सभी बातें लिखी गई हैं। तो क्राइटेरिया 1 यहाँ पर देखिए करिकुलर एस्पेक्ट्स है। करिकुलर एस्पेक्ट्स का टोटल वेट जो है वो 150 है। इसके अंदर 4 की इंडिकेटर्स हैं, 2 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हैं और 9 क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं। क्राइटेरिया 2 टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, जिसका कि ओवरऑल वेट 200 है। इसके अंदर 7 इंडिकेटर्स की इंडिकेटर्स हैं, 6 क्वालिटेटिव क्वेश्चंस और 13 क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से थर्ड क्राइटेरिया रिसर्च, एक्सटेंशन एंड इनोवेशन, जिसका कि टोटल वेट है 250, 7 की इंडिकेटर्स हैं उसमें, 4 क्वालिटेटिव और 25 क्वांटिटेटिव। इसी तरह से क्राइटेरिया 4 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, क्राइटेरिया 5 स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, criteria 6 governance, leadership and management, and criteria 7 institutional values and best practices। तो जो भी हमने अभी 115 क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी के देखे, उनको क्राइटेरिया और की इंडिकेटर्स के अंदर आपको सेग्रीगेटेड क्वेश्चंस की कैटेगरी मिलेगी। तो क्राइटेरिया 1 जो कि करिकुलर एस्पेक्ट है, जिसका कि ओवरऑल वेट 150 डिसाइड किया गया है, उसके अंदर जो 4 की इंडिकेटर्स प्रेजेंट हैं। पहला वाला करिकुलम डिजाइन और डेवलपमेंट से रिलेटेड है, किस तरह से करिकुलम को डिजाइन किया गया है, उसकी डेवलपमेंट की क्या प्रोसेस है। किसी तरह का इसमें आप जो है डेवलपमेंट प्रोसेस लेते समय आप किसी तरह का फीडबैक ले रहे हैं, किन लोगों से फीडबैक ले रहे हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए इन्वॉल्व हैं। इस तरह के कुछ प्रश्न जो है इसमें करिकुलम डिजाइन और डेवलपमेंट में लिए गए। कितनी बार आपने प्रोग्राम्स को रिवाइज किया है, इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा वाला जो की इंडिकेटर है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, ये यूनिवर्सिटीज के लिए ध्यान रखिए, कॉलेजेस में जो है ये करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, प्लानिंग की बात करेंगे। वहां पर करिकुलम यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, तो कॉलेजेस के केस में प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉलेज ने किस तरह से किया है, वहां पर वो चीजें आएंगी। दूसरा देखिए इसमें की इंडिकेटर जो है एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें आप कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। क्या आप CBCS इलेक्टिव कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं, क्या आप एम्प्लॉयबिलिटी पे बेस्ड और स्किल एनहांसमेंट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रख रहे हैं, कुछ एफर्ट्स अपनी लगा रहे हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर है। इसी तरह से करिकुलम एनरिचमेंट, करिकुलम के अलावा आपने करिकुलम को किस तरह से एनरिच किया है, स्टूडेंट्स उससे किस तरह से बेनिफिट हो रहे हैं, ये सब प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध हैं। फीडबैक सिस्टम, जब आप करिकुलम डिजाइन करते हैं तो आपने किस किस से फीडबैक लिया है, करिकुलम डिजाइनिंग प्रोसेस का जो फीडबैक है वो यहाँ पर कलेक्ट किया जाता है। क्राइटेरिया 2 जो कि टीचिंग, लर्निंग, इवैल्यूएशन की बात कर रहा है, इसमें देखिए पहला जो कि इंडिकेटर है स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल। तो आपके स्टूडेंट्स कहाँ से कितना प्रतिशत उनका एनरोलमेंट है, हाउ मच परसेंटेज एनरोलमेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स, देयर प्रोफाइल, आप किस तरह के स्टूडेंट्स को आप ले रहे हैं, कितने जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के एडमिटेड हैं स्टूडेंट्स में, आप स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इस तरह के कुछ प्रश्न यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। इसके अलावा कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, मतलब आप स्टूडेंट जो अलग अलग बैकग्राउंड के हैं उनको
ध्यान में रखते हुए अपने करिकुलम को किस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं। उनके लिए आप कुछ डाइवर्सिटी को कैटर करने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट लगा रहे हैं। स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। उनकी नीड्स के बेसिस पर आप कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा क्लासेस या कुछ और चीजें ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, किस तरह की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेटरी सभी को आप सारे के सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं या नहीं। आईसीटी इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं या नहीं। किस तरह की फैसिलिटीज आपके संस्थान में उपलब्ध है टीचिंग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए, वो सब चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। टीचर प्रोफाइल एंड क्वालिटी, तो टीचर की किस तरह की प्रोफाइल आपके संस्थान में जो टीचर कार्यरत है उनमें कितने लोग पीएचडी हैं, उनका एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है और उनकी कोई अवार्ड्स जो भी उन्होंने रिसीव किए। क्वालिटी के बारे में, टीचर में किस तरह के टीचर्स और उनकी कैसी क्वालिटी है, ये पूछा गया है यहाँ पर। इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है इसलिए यहाँ पर हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन की बात करें जो कि यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है। अगर यदि ये कॉलेज होता तो यहाँ हम इंटरनल इवैल्यूएशन की बात करते। तो इवैल्यूएशन प्रोसेस में किस तरह के रिफॉर्म्स लिए गए हैं, तो आप यदि कोई रिफॉर्म्स लिए हैं, ग्रीवेंसेस को किस तरह से रिड्रेस करते हैं आप। इवैल्यूएशन में जो आपका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स है वो टाइमली है या नहीं, ये सब पैरामीटर यहाँ पर है। इसके अलावा स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम्स, तो स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस आप रेगुलरली मेजर कर रहे हैं या नहीं। तो आजकल देखिए नई क्योंकि करिकुलम रिवीजन की हम बात कर रहे हैं तो ज्यादातर ये प्रमोट किया जा रहा है कि लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम हो आपका। आप देख सकते हैं कि यूजीसी की वेबसाइट में भी कुछ करिकुलम बेस्ड लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम स्टैंडर्ड सिलेबस आपके उपलब्ध कराए हैं। यदि आपकी यूनिवर्सिटी में ये ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिए गए हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि आउटकम को आप किस तरह से मेजर कर रहे हैं। आउटकम का जो यदि नहीं कर रहे हैं तो कब कर पाएंगे, उसकी कुछ प्लानिंग या अपने लेवल पे यदि मान लीजिए आपकी यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट नहीं किया है उस करिकुलम फ्रेमवर्क को, तो अपने लेवल पे आप करिकुलम का कुछ आउटकम और कुछ सोच सकते हैं और उसका किस तरह से असेसमेंट किया जा सकता है स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स का, वो आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, कि आप स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे स्टूडेंट्स जो आपके संस्थान में पढ़ रहे हैं उनसे नैक फीडबैक लेता है कि आप संस्थान में किस तरह के माहौल किस तरह का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, टीचिंग लर्निंग से आप सेटिस्फाइड है या नहीं। वो सारे कुछ प्रश्न इसमें 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट से पूछे गए हैं और उनका जवाब जो है वो ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से स्टूडेंट सबमिट करते हैं। उनको एक लिंक दी जाती है, उसको सबमिट करते हैं, वो नैक के पास डायरेक्टली आता है। तो संस्थान का रोल इसमें ये है कि उनको ये पता चलता रहता है कि हमारे कॉलेज में कितने लोगों ने इस सर्वे को रेस्पॉन्ड कर दिया, कितना परसेंटेज रेस्पॉन्स है वो यहाँ पर पता कर लगता है संस्थान को। थर्ड क्राइटेरिया रिसर्च इनोवेशन और एक्सटेंशन है, जिसके बारे में पहले तो आप किस तरह से रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं, सीड मनी प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं, या फिर और किसी तरह की ग्रांट्स आपके फैकल्टी मेंबर्स अगर रिसीव करना चाहते हैं उनको किस तरह का फैसिलिटीज मिली हुई है। यदि कोई रिसर्च लैब्स आपके यहाँ पर है तो वो उसको उसकी फ्री जो फैसिलिटीज है उनको अपग्रेड कर रहे हैं या नहीं, इस तरह के कुछ प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, कितने फैकल्टी मेंबर्स आपके जो हैं वो रिसर्च के लिए ग्रांट ले रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी से, वो ग्रांट्स कितने डिपार्टमेंट्स, कितने कॉलेज, कितने फैकल्टी मेंबर्स, ये आपका जो है यहाँ पर कुछ प्रश्न है। इनोवेशन इकोसिस्टम में मतलब ये कि आप आपके पास कोई इनोवेशन से रिलेटेड आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कि आईपीआर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं, या फिर आपके पास में ये कोई इंक्यूबेशन सेंटर है जिसके माध्यम से आप स्टार्टअप्स का कोई प्रपोजल स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, वो यहाँ पर बताना होगा। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स, तो कितने पब्लिकेशन आपकी फैकल्टी मेंबर्स के नेशनल इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स में है, यूजीसी लिस्टेड केयर लिस्ट जर्नल में है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में है, बुक चैप्टर्स में है। यदि कोई फैकल्टी मेंबर रिसर्च के लिए कोई अवार्ड रिसीव कर रहा है तो वो भी यहाँ पर बताना होगा। कंसल्टेंसी, मतलब आपके फैकल्टी मेंबर्स बाहर किसी तरह की कंसल्टेंसी यदि प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका डेटा आपको यहाँ पर देना होगा और उसका डॉक्यूमेंट भी कि किस तरह की कंसल्टेंसी, और उससे यदि कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो इनकम जनरेटेड भी आप यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन एक्टिविटीज, देखिए आपकी संस्थान में किस तरह की एक्सटेंशन एक्टिविटीज एनएसएस एनसीसी के माध्यम से या अन्य कोई जैसे कि ब्लड डोनेशन या क्लीनिंग कैंपेन या और कोई एक्टिविटीज जो भी है वो यहाँ पर आप यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं।
कोलैबोरेशन मतलब कितने MOUs वगैरह आपने साइन किए हैं और उन MOUs में किस तरह की एक्टिविटी, फैकल्टी एक्सचेंज, रिसर्च, स्टूडेंट एक्सचेंज या और किसी तरह का आपने एक्टिविटी की है, वो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। चौथा जो क्राइटेरिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज है, जिसमें कि पहला जो इंडिकेटर है वो फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। तो आपके संस्थान में किस तरह की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह के क्लासरूम्स या ICT इनेबल्ड है या नहीं है, उसमें कोई प्लेग्राउंड्स या स्पोर्ट्स रिलेटेड फैसिलिटीज किस तरह की हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पूछी गई हैं। लाइब्रेरी एज ए लर्निंग रिसोर्सेस, कितनी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में है, कितना आपका एक्सपेंडिचर लाइब्रेरी का है और कितने लोग आपकी लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं, और यदि लाइब्रेरी जो है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड है या नहीं है, कैटलॉग आप मेंटेन किस तरह से करते हैं, उसका यूसेज कितने लोग करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्टूडेंट कंप्यूटर रेशियो क्या है आपके यहाँ पर, बैंडविड्थ क्या है आपके कैंपस में, और इसी तरह के अगर आप कंटेंट डेवलप कर रहे हैं तो उसकी कोई फैसिलिटीज आपके यहाँ पर है या नहीं, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मेंटेनेंस ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कई लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पर उनके पास कोई बजट प्रोविजन जो है एनुअली किस तरह से मेंटेन किया जाए और मेंटेनेंस में इतना खर्चा हुआ, वो उस तरह का जो ब्यौरा है आपको यहाँ पर देना होगा। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, जो पांचवा क्राइटेरिया है, इसमें स्टूडेंट सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट को आप किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आप उनको किसी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कोई फैसिलिटी दे रहे हैं, या स्टूडेंट ग्रेवेंसेस को किस तरह से रिड्रेस कर रहे हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएट सेल है या नहीं, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट प्रोग्रेशन, तो स्टूडेंट का जो हायर एजुकेशन में प्रोग्रेशन है या फिर उनका कोई किसी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इस तरह की एग्जामिनेशंस को यदि वो क्लियर करते हैं, वो सब चीजें आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज, मतलब स्टूडेंट्स यदि किसी दूसरी चीजों में पार्टिसिपेट, कल्चरल इवेंट्स में, यूनिवर्सिटी लेवल के कुछ इवेंट्स में, या कोई अवार्ड स्पोर्ट्स में विन कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। और स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन यदि किसी स्टैट्यूटरी बॉडी में, जैसे कि यूनिवर्सिटी के किसी या आपके कॉलेज की बॉडी में भी यदि स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन आप ले रहे हो, वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। एल्यूमिनाई एंगेजमेंट जो है, बेसिकली एल्यूमिनाइज को आप किस तरह की जो स्ट्रक्चर एल्यूमिनाई का जो एल्यूमिनाई सेल है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, या एल्यूमिनाई का कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। एल्यूमिनाई का डाटा जो है आपको मेंटेन करना है, कहाँ है और किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके कॉलेज डेवलपमेंट के लिए, इस चीज का आपको ट्रैक करना है यहाँ पर। छठवां जो क्राइटेरिया है वो है गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल विजन एंड लीडरशिप की यहाँ पर बात की गई है। सभी इंस्टीट्यूशंस के पास एक ना एक विजन या मिशन स्टेटमेंट होता है, तो उस विजन और मिशन को उनकी जो लीडरशिप है उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो डिसेंट्रलाइज्ड और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है आपके विजन और मिशन से मेल खाता हो। तो विजन और मिशन के अकॉर्डिंग ही आपको इन चीजों को प्लान करना है, एक्टिविटीज को। इसी तरह से स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके पास शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो कि आप छोटे समय में इतना अचीव करेंगे, बड़े समय में इतना। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की यहाँ पर बात की गई है और उसी तरह के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब आप अपनी फैकल्टी मेंबर्स को किस तरह से एम्पावर कर रहे हैं। यदि आप फैकल्टी मेंबर्स को कुछ एनकरेजमेंट दे रहे हैं कि वो किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाएं, उनको आप कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा स्टाफ को भी यदि आप एनकरेज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन, जो भी आपका फंडिंग और ग्रांट्स जो मिल रही हैं आपके संस्थान को, उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है, रेगुलर ऑडिट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, यहाँ पर देखिए आपको IQAC के जो भी एफर्ट्स हैं, IQAC एक स्टैंडर्ड सेल होता है जिसमें एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर NAAC ने दिया है कि इतने फैकल्टी मेंबर्स होने चाहिए, इतने हायर ऑफिशियल, इतना मैनेजमेंट के लोग होने चाहिए,
वो सारा स्ट्रक्चर आपको बनाना है और इस सेल के माध्यम से आपको जो भी एक्टिविटीज प्रेस्क्राइब्ड है, जैसे कि रेगुलर मीटिंग्स और प्रोग्राम्स करना और आपका जो भी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्मेंस है उसको, उसकी क्वालिटी को एंश्योर करना, उसको किस तरह से आप लगातार अपग्रेड करते रहेंगे, सतत उसमें प्रयास करना है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए और आपका जो भी एफर्ट है वो आपके हायर अथॉरिटीज के साथ रेगुलर इंटरवल पर जाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ एफर्ट जो है वो IQAC के माध्यम से आपको करनी चाहिए और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। सातवां क्राइटेरिया जो है इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का है, जिसमें कि पहला की इंडिकेटर इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटीज के बारे में बात कर रहा है। तो मतलब आप यहाँ पर किस तरह की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो वैल्यूज से रिलेटेड है, जैसे कि ग्रीन प्रैक्टिसेस हैं, एनर्जी ऑडिट्स हैं, क्वालिटी ऑडिट्स हैं, कुछ आप कोमेमोरेटिव डेज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। एनर्जी से रिलेटेड आप कुछ स्पेसिफिक एफर्ट लगा रहे हैं, क्लीनिंग से, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कुछ एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो यहाँ दिखा सकते हैं। प्रश्न भी आपसे स्टैंडर्डाइज्ड पूछे गए हैं, आप उनको ध्यान से देखें और उसके बाद इसमें जो है अपने प्रयास शुरू करें। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो अगला की इंडिकेटर है, इसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करे और उन बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए एक फॉर्मेट NAAC ने प्रोवाइड किया है, उसी फॉर्मेट में आपको जो है सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में बेस्ट प्रैक्टिसेस बतानी होती है और वो जो इवैल्यूएट करते हैं वो पीयर टीम मेंबर्स ऑन साइट विजिट के दौरान उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को इवैल्यूएट करते हैं, तो वो आपको देनी होती है। इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस में आपको ये बताना, ये भी एक क्वालिटेटिव पैरामीटर है जिसमें आपको ये बताना होता है कि आपका संस्थान बाकी संस्थानों से जो कि उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, उस रीजन में है, किस तरह से डिस्टिंक्ट है। तो ये सब चीजें देखिए कॉलेज के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए मेरा ये आपसे अर्नेस्ट रिक्वेस्ट होगा कि इसके लिए आप खुद ही हर एक पैरामीटर को बड़े ध्यान से समझिए, पढ़िए और उसका एनालिसिस करिए कि आप इसमें अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये सभी पैरामीटर, जिसमें जो 7 पैरामीटर, उनके की इंडिकेटर, प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा की। इसके बाद जो प्रोसेस ऑफ असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन है वो स्टैंडर्ड है, देखिए इस तरह से प्रोसेस होती है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, संस्थान को रजिस्टर करना होता है, जिसके माध्यम से उनको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। तो रजिस्टर करने के बाद संस्थान को IAQA सबमिट करनी होती है। IAQA एक ऑनलाइन फॉर्म है जिसमें आपसे जो भी आप प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उन प्रोग्राम की डिटेल ली जाती है और फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है और एफिलिएशन, जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं उनका एफिलिएशन कहाँ से, कौन सी यूनिवर्सिटी से है और यदि आप प्रोफेशनल प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं तो उसका रिकॉग्निशन किस स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी से है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी। इसका वेरिफिकेशन NAAC के ऑफिशियल्स द्वारा किया जाता है। ये वेरिफिकेशन होने के बाद आपको IAQA का अप्रूवल मिल जाता है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन के बाद IAQA अप्लाई करने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, आज आप रजिस्टर कर सकते हैं, 6 महीने बाद आप IAQA सबमिट कर सकते हैं। IAQA लेकिन जब आप सबमिट कर देते हैं तो उसके अप्रूवल के 45 दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर आपको सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा करनी होती है। जैसा मैंने कहा कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट में क्राइटेरिया, की इंडिकेटर, प्रश्न, डाटा, सारी चीजें हैं, ये सभी आपको पोर्टल के माध्यम से 45 दिनों के अंदर सबमिट करना होता है। जब आप ये सबमिट कर देते हैं 45 डेज में, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक फीस होती है, वो भी आपको जमा करनी होती है, जिसको आप SSR का फर्स्ट लेवल पेमेंट समझिए। दिस इज SSR फर्स्ट लेवल पेमेंट व्हिच नीड्स टू बी डिपॉजिटेड अलोंग विद द SSR। जब आप एक बार SSR जमा कर देते हैं, उससे एसोसिएटेड फी जमा कर देते हैं, तो SSR का इवैल्यूएशन होता है जो कि DVV करती है, डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, थर्ड पार्टी एजेंसी। आपने जो SSR में क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस में जो भी डाटा प्रोवाइड किया है उसको वेरीफाई करना। उसको कैसे वेरीफाई करना, आपने इसमें अपलोड किए हुए हैं डॉक्यूमेंट्स भी, इसमें आपने टेम्पलेट्स भी अपलोड की हुई हैं, तो जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर दी है उसके माध्यम से, और इसके अलावा कोई एक्सटर्नल वेबसाइट्स जैसे कि AISHE हो गया, UGC हो गया, फंडिंग एजेंसी होगी, जहां आपने लिखा कि हमको यहाँ से ये ग्रांट मिली है, कुछ इंफॉर्मेशन वहां से उपलब्ध है या नहीं, इस तरह से वो क्रॉस वैलिडेट करके आपने जो SSR में क्वांटिटेटिव डाटा दिया है उसका वैलिडेशन करते हैं।
तो क्वांटिटेटिव डाटा का वैलिडेशन डीवीवी एजेंसी के माध्यम से जब हो जाता है तो प्री क्वालिफिकेशन मिलता है आपको। प्री क्वालिफिकेशन का मतलब है कि आपने एटलीस्ट 25% क्वांटिटेटिव डाटा में सिक्योर कर लिया है। जब आपका इवैल्यूएशन खत्म होगा तो प्री क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्री क्वालिफिकेशन के बाद आपको पीयर टीम विजिट मैनेजमेंट की प्रोसेस करनी होती है, जिसमें आप अपने कॉलेज में कब विजिट चाहते हैं, प्रेफरेंस, डेट ऑफ प्रेफरेंस देते हैं और कुछ एडिशनल लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और एसएसआर की सेकंड लेवल पेमेंट आपसे मांगी जाती है, वो आपसे यहाँ पर आपको देनी होती है। लॉजिस्टिक्स फीस भी हम आपसे यहाँ पर लेते हैं। जब ये सब आप कर लेते हैं उसके बाद असेसमेंट होता है। तो क्योंकि क्वांटिटेटिव का इवैल्यूएशन, क्वांटिटेटिव डाटा का इवैल्यूएशन डीवीवी कर चुकी है, बच जाता है क्वालिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव डाटा है उसको पीयर टीम असेसमेंट, पीयर टीम मेंबर्स जो हैं विजिट के दौरान असेस करते हैं और उसमें स्कोर्स देते हैं। जब ये असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट होती है तो पोर्टल में ही क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन और क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, इनका जो असेसमेंट है आपस में इंटीग्रेट हो जाते हैं और ग्रेड आ जाती है ऑटोमेटिकली पोर्टल के माध्यम से। और एक हमारी इंटरनल कमेटी होती है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके बाद आपकी जो डिक्लेरेशन ग्रेड जो है वो डिक्लेयर हो जाती है। हम अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराते हैं ग्रेड और आप पोर्टल पर भी ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ग्रेड डिक्लेयर हो गई, उसके बाद आपको 1 साल के बाद में AQAR का सबमिशन देना होता है। एनुअल क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट आपको जमा करनी होती है। तो AQAR एनुअली 5 साल तक आप जमा करते रहेंगे। यदि आप ग्रेड से सेटिस्फाइड हैं तो अपील के लिए आप आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि यदि आपसे कोई क्वेरी पूछी गई है IIQA के दौरान या सेल्फ स्टडी रिपोर्ट जमा करने के दौरान और यदि आपने रिस्पांस टाइमली नहीं किया है तो NAC ये कॉल ले सकता है कि आपकी जो SSR है उसको वो अटेम्प्ट टू विड्रॉ की कैटेगरी में डाले, उसे DVV नॉन कंप्लायंस डिफाइन कर दें। अटेम्प्ट टू विड्रॉ ट्रीट कर सकते हैं हम इसको और आपकी जो है SSR को रिजेक्ट कर सकते हैं। उस केस में आपको दोबारा से IIQA से स्टार्ट करके आना होता है। नॉर्मल कंडीशंस में जो भी क्वेरीज आपसे पूछी जाती हैं आपको टाइमली पोर्टल के माध्यम से रिस्पांस देना ही है और टाइमलाइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है ताकि वो आपसे मिस ना हो। तो इस तरह के कुछ परसेंटेज पर बेस्ड क्वालिटेटिव क्वेश्चंस आपकी SSR में आपको दिखेंगे, जिसमें हमने एनुअली कितना परसेंटेज जिसमें कि CBCS इंप्लीमेंट हुआ है इसके बारे में पूछा है, उसका डेटा 5 वर्षों का डेटा आपसे पूछा है, वो डेटा आपको देना है और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्सेल शीट्स में आपको इसमें प्रोवाइड करनी है। इस तरह के कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस इसमें SSR में उपलब्ध हैं, जिसमें हमने पूछा है कि इंस्टीट्यूशन असेसेस द लर्निंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेस द स्पेशल प्रोग्राम्स फॉर एडवांस लर्नर्स एंड स्लो लर्नर्स। तो आप एडवांस और स्लो लर्नर की कैटेगरी पहले आइडेंटिफाई करेंगे, आप उनकी नीड्स को किस तरह से कैटर कर रहे हैं इसके बारे में आप यहाँ पर 500 शब्दों में लिखेंगे। विदिन 500 वर्ड्स यू हैव टू प्रोवाइड द आंसर। जो आंसर आप यहाँ लिखेंगे ये पीयर टीम मेंबर्स को दिए शेयर किए जाएंगे और वो लोग ऑन साइट इन चीजों को वेरीफाई करेंगे जो भी आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। ये कैलकुलेशन दिखाई गई है कि ईयर वाइज जो है किस तरह से आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं और टोटल एवरेज आप किस तरह से 5 वर्षों का कैलकुलेट करते हैं। तो जो ईयर वाइज परसेंटेज है उसका एग्रीगेट हो जाता है, एग्रीगेशन पोर्टल में होता है। आपको परसेंटेज भी नहीं कैलकुलेट करना, आपको केवल 5 वर्षों का डेटा देना है। उन 5 वर्षों के डेटा से ही आपका ओवरऑल एग्रीगेट 5 वर्षों का ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। ये एक स्लाइड्स में ये दिखाया गया है कि आपने जो भी डेटा दिया है उसको बेंचमार्क के माध्यम से स्केल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पोर्टल में ऑटोमेटिकली बैक एंड पे ये होता रहता है। जो भी आप देते हैं जैसे कि नंबर ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज imparting transferable and life skills, ये क्वेश्चन है SSR में। आपने कुछ डाटा प्रोवाइड किया, वो डाटा आपका एक या तो 0 में स्कोर होगा या 1 में होगा। जैसे मान लिया आपने कहा कि 5 है, हम 5 वैल्यू एडेड कोर्सेज जो है लाइफ स्किल्स के लिए ऑफर कर रहे हैं और यहाँ पर हमने प्रोग्रामिंग की हुई है सिस्टम में और बैकएंड में प्रोग्रामिंग की गई है कि 0 to 2 होगा तो आप इनको 0 दे दीजिए, 2 to 4 होगा तो इनको आप 1 दे दीजिए, 4 to 6 होगा तो आप इनको 2 दीजिए। इस तरह से बैकएंड प्रोग्रामिंग की गई है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 5 लिखेंगे ऑटो स्कोर हो जाएगा वो, थर्ड कैटेगरी में यहाँ पर 2 स्कोर उनको मिल जाएगा। तो इस तरह से स्कोरिंग बेंचमार्क प्रोग्रामिंग सिस्टम में की गई है
तो डाटा देते ही ये ऑटो स्कोर जनरेट हो जाता है। तो पोर्टल के माध्यम से सब कुछ हो रहा है। तो जो सिस्टम जनरेटेड ग्रेड है, ये मैंने आपको बताया कि क्वांटिटेटिव में जो आपको स्कोर मिला है और क्वालिटेटिव में जो आपको स्कोर मिला है, टीम मेंबर्स ने जो आपको स्कोर दिया है, उसका समेशन आपका जो है वो ग्रेड होता है। वर्कफ्लो के बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, ये हो गया। इसमें आप देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी हम थोड़ा सा देख लें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है रजिस्ट्रेशन के लिए। एक ऑनलाइन फॉर्म होता है, इसमें आपको एक्रेडिटेशन, प्रीवियस एक्रेडिटेशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है कि आप पहली बार NAAC के लिए आ रहे हैं या दूसरी बार। यदि आप दूसरी बार या तीसरी बार आ रहे हैं तो प्रीवियस साइकिल में आपकी ग्रेड CGPA क्या थी वो आपको बतानी होती है। इसके अलावा आयशे डेटा अपलोड करना बहुत जरूरी है, उसमें आयशे कोड जनरेट किया होता है और वो आपको मांगा जाता है और सर्टिफिकेट भी आगे आपसे पूछा जाता है। तो ये रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी की रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूशन का अपना एक ईमेल आईडी होना चाहिए और फोन नंबर जो कि कंसिस्टेंटली सेम रहे, उसमें चेंज ना हो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे ऑनलाइन फॉर्म में मांगी जाती है। जब आप ये भर देते हैं तो आपको एक्टिवेशन लिंक मिल जाता है और यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। आपने जो भी ईमेल प्रोवाइड किया है उसमें ऑटो जनरेट होकर आपको जो है वहां पर ये दोनों चीजें मिल जाती हैं। इसी तरह से IIQA में क्या रिक्वायरमेंट है। IIQA में जैसा मैंने बताया कि प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल आप यहाँ पर भरेंगे कि हम किस तरह के इंस्टीट्यूशन है, क्या हम ऑटोनॉमस कॉलेज है या एफिलिएटेड कॉलेज है, उसमें आपके किस तरह के प्रोग्राम, हम BA रन कर रहे हैं, BSc रन कर रहे हैं, BCom रन कर रहे हैं, वो किस डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं। और आप ये लिखेंगे कि वी आर एफिलिएटेड नॉट ऑटोनॉमस, तो जैसे ही आप नॉट ऑटोनॉमस कहेंगे तो एफिलिएटेड हो जाएगा आपकी स्कीम। इसी तरह से एलिजिबिलिटी कि आपका ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस कब से है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा जाता है कि हम इस ईयर में एस्टैब्लिश हुए थे, तो उससे जो बैच रीसेंट बैचेस हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोर्टल के माध्यम से चेक हो जाता है और जो भी आप यहाँ पर भरते हैं, जो भी एड्रेस डिटेल्स, जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देते हैं, उसको फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है और वही आपकी SSR में भी दिखाई देता है। और जब ये अप्रूव होती है तभी आप SSR भर पाते हैं, इससे पहले आपको SSR लिंक एक्टिवेटेड नहीं मिलेगी। तो IIQA की ये प्रोसेस है, फ्लो देखिए। इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी पहले चेक की जाती है, एफिलिएशन कंप्लायंस, कुछ प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, किन यूनिवर्सिटी से वो एफिलिएटेड है, एकेडमिक इनपुट्स, कितने टीचर्स हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी रिजर्व कैटेगरी के, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसके अलावा इससे एसोसिएटेड फीस होती है 28,500, वो आपको यहाँ जमा करनी होती है और फिर उसके बाद उनका वेरिफिकेशन होता है। तो वेरिफिकेशन के दौरान हम क्रॉस चेक करते हैं आपने जो भी अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट, आपकी वेबसाइट पे कुछ जो डिस्क्रिपेंसी है या आपने यदि कोई UGC के सर्टिफिकेट्स लगाए हैं उसमें किसी तरह का नेम डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है, ये सारी चीजें क्रॉस वैलिडेट करने के बाद ही आपको IIQA का अप्रूवल मिलता है। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपसे क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है कि बताइए ये डिस्क्रिपेंसी क्यों आई है, और पोर्टल के माध्यम से आपको उसका जवाब देना होता है, क्लैरिफिकेशन का आंसर प्रोवाइड करना होता है। तो जब ये चीजें क्लियर हो जाती हैं तो आपको अप्रूवल मिल जाता है NAAC की तरफ से और उसके बाद ही आपकी SSR की लिंक जो है वो ओपन होती है। यदि कोई डिस्क्रिपेंसी आप सॉल्व नहीं कर पाते, लॉन्ग पेंडिंग, बहुत दिनों तक आप उसका जवाब नहीं दे पाते, तो NAAC जो है वो IIQA को रिजेक्ट करने का भी डिसीजन ले सकती है। तो इस तरह से कुछ रिजेक्शन क्लॉज भी लिया हुआ है हमने। अगर किसी वजह से आपकी IIQA रिजेक्ट हो जाती है तो सेम फीस से एटलीस्ट 2 बार आप 1 साल के अंदर आ सकते हैं। फीस दोबारा आपसे नहीं ली जा सकती 1 साल के अंदर यदि आप आते हैं। इसी तरह से SSR में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, आपको सबसे पहले मैट्रिक्स को समझना होगा। उसमें जो भी रिक्वायर्ड डेटा है, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई है, टेम्पलेट्स में क्या है, गाइडलाइंस में क्या है, डेटा रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब चीजें आपको अच्छी तरह से समझनी है। उससे रिलेटेड क्या क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनका पहले आपको डिजिटाइजेशन करना है, क्योंकि आपको ये सब चीजें पोर्टल में अपलोड करनी है। तो डिजिटाइजेशन करना मतलब स्कैन करके आपको प्रॉपर रेजोल्यूशन में आपको रखना है, क्योंकि 5 MB की जो है लिमिट होती है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की। तो उसका रेजोल्यूशन वगैरह जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद यदि कॉलेज है तो हमने एक प्रोविजन प्रोवाइड किया है नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक्स का।
कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप कह सकते हैं कि हम रूरल है या हम ये नहीं है, तो हम ये हमारे लिए संभव नहीं। तो हमने कुछ नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस में दिए हैं कि इनमें से आप ये कह सकते हैं कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो हर एक क्राइटेरिया में है वो कुछ क्वेश्चंस, लेकिन 1 और 2 में आपको कंपल्सरीली सारे अटेम्प्ट करने, 1, 2 और 7 कंपल्सरी है। जो ऑप्ट आउट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं वो केवल 3, 4, 5, 6 में है। उनमें से ही आप कुछ 10 वेट का क्वेश्चन ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 वेट का, और टोटल 30 वेट आप इसमें से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जो भी इवैल्यूएशन क्राइटेरिया डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन एजेंसी लेती है उसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में हमने दिया है कि डीवीवी को गाइडलाइन इशू की गई है कि इस तरह से आप इवैल्यूएशन कीजिए, जिसको हमने एसओपी डॉक्यूमेंट किया कहा है। तो आप उनको इसको देख सकते हैं। इसको भी बहुत समझना जरूरी है ताकि आप जो है डाटा अपलोड करते समय एसओपी को ध्यान में रखें। तो ये इस एसएसआर के कंपोनेंट है। देखिए, प्रोफाइल, एक्सटेंडेड प्रोफाइल, क्वालिटी इंडिकेटर फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूटिव समरी और नॉन एप्लीकेबल मैट्रिक का सिलेक्शन। तो इस तरह से स्टेप्स फॉलो करनी है आपको। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा देना है आपको, और सबमिशन में आपको इस तरह से जो है प्रोसेस फ्लो फॉलो करनी है। डेटा टेम्पलेट, फर्स्ट लेवल पेमेंट, नॉन एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद पैरेलली स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, डेटा वैलिडेशन प्रोसेस, ये पैरेलल फॉर्म आ गया, अपन वही भर देंगे। सबमिशन के बाद आपको लाइट देंगे। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, तो आपको जो है एसएसआर को अपडेट दोबारा होती है। तो इस अपडेटेड एसएसआर को आपको वेबसाइट पर अपलोड करना है। स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे इज एन ऑनलाइन सर्वे। जैसे मैंने आपको बताया, ये आपका डीवीवी के पैरेलल होता है। इसमें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। और कॉलेजेस के लिए हम जो रेस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि कम से कम 10% स्टूडेंट रेस्पॉन्ड करें, या 100 व्हाटएवर इज लेस। इसी तरह यूनिवर्सिटीज के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10% और 500 व्हिचएवर इज लेस। इतना रेस्पॉन्स यदि आता है तो स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे को हम एसएसआर में इंक्लूड करते हैं। इनकेस ये रेस्पॉन्स इससे कम है तो आपका स्टूडेंट सर्वे रेस्पॉन्स कंसिडर नहीं किया जाता और आपको 0 मार्क मिलता है इसमें। तो इस तरह का स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे की रिक्वायरमेंट है, और ये 1 महीने का समय रहता है जिसकी प्रोसेस फ्लो फॉलो होती है। देखिए, इस तरह से सर्वे कंडक्ट होता है। सर्वे कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डाटा प्रोवाइड करना होता है। सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के साथ आप सभी स्टूडेंट्स का डेटा देते हैं, और पहले सर्वे की लिंक 30% स्टूडेंट्स को जाती है। और जब स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड करते हैं और यदि वो रेस्पॉन्स रेट कम है तो बचे हुए 70% को भी लिंक पहुंचा दी जाती है। और उसके बाद भी यदि रेस्पॉन्स कम है तो एक्सटेंशन दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है नैक को, और फिर जो है सर्वे लिंक दोबारा रीसेंड की जाती है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है लगभग 1 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। पीयर टीम विजिट मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, देखिए, आपको 3 डेट्स को पोर्टल में सेलेक्ट करना है। असेसर्स जो है अपनी अवेलेबिलिटी कैलेंडर जो है उनके पोर्टल में देते हैं, और उसमें पीयर टीम्स का जो सिलेक्शन होता है पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। स्पेशलाइज्ड जो भी आपके कॉलेज में प्रोग्राम रन हो रहे हैं उसकी मैचिंग के हिसाब से पोर्टल सिलेक्ट करता है 3 मेंबर्स की कमेटी, और वही कमेटी आपको कॉलेज में विजिट करती है। और ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट जो है वो नैक करता है। उसके लिए फी आपसे लेते हैं हम, लॉजिस्टिक फी के नाम से, और उसके बाद उसका अरेंजमेंट किया जाता है। तो IQAC का स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। ये स्ट्रक्चर आप सभी इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए। स्ट्रक्चर्स की गाइडलाइंस हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और इसके क्या क्या एडवांटेज है, देखिए, नैक भी सपोर्ट करता है IQAC को, और यूजीसी की में भी कुछ ग्रांट्स का प्रोविजन है, वो आप ले सकते हैं। और इसमें क्वालिटी रिलेटेड जो भी काम है वो आपने कर सकते हैं। फीडबैक, जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, टीचर का फीडबैक और जो भी एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव फीडबैक, उससे उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, और प्रोग्राम्स, एकेडमिक और एक्टिविटी रिव्यू कर सकते हैं उसको। और कोलैबोरेशन के लिए भी आपको एफर्ट लेनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी क्वालिटी सस्टेनेंस और एनहांसमेंट की मेजर्स हैं, आपको किसको रिपोर्ट करना है, आपकी जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसमें आप किस तरह से इनको प्रोजेक्ट करके इसमें किस तरह से इसको एनहांसमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, वो आपको देखना है यहाँ पर।
तो ये स्ट्रक्चर है, वेबसाइट पर भी है। देखिए इसमें चेयरपर्सन जो होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, कुछ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, 3 to 8 टीचर्स होते हैं, एक मैनेजमेंट का मेंबर होता है, एक मेंबर स्टूडेंट सोसाइटी और एल्यूमिनाई से होता है, एक मेंबर एम्प्लॉयर और इंडस्ट्री का होता है, और एक सीनियर मेंबर जिसको हम IQAC कोऑर्डिनेटर या डायरेक्टर कहते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है और वही जो है इसमें इस पूरे मैकेनिज्म को ड्राइव करती है। आपको ये बहुत जरूरी है, कंपोजिशन जब आप रखेंगे तो डाइवर्सिटी का आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि सभी के सभी एक ही डिपार्टमेंट के लोग हों, और सारे के सारे जो है उनकी इंटीग्रिटी का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है कि वो दे शुड बी ऑफ अर्न्ड इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट एंड एक्सीलेंस एंड शुड हैव अ कमिटमेंट। एंड ये एडवाइजेबल है कि 2 से 3 साल में जो है आप इनको चेंज करते रहें, ऐसा ना हो कि सालों साल तक वही IQAC टीम आपकी बनी रहे। इसके फंक्शंस देखिए इस तरह से हैं कि डेटा कंपाइलेशन मैनेजमेंट करना, एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक प्रोसेसेस का रिव्यू करना, गैप आइडेंटिफाई करना कि यहाँ इन चीजों को इम्प्रूव किया जा सकता है और उससे उनको सफिशिएंट फ्रीडम मिलनी चाहिए और इम्प्रूवमेंट की तरफ प्रयास करने के लिए सपोर्ट भी मिलना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और मैनेजमेंट से। और जैसे मैंने बताया बार बार कि ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस, FDPs वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और कोलैबोरेशन के लिए जो भी है वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें NAAC के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मुझे लगता है कि आप सब इन चीजों को समझ पाए होंगे और डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि सभी लोग, सभी संस्थान जो आज जुड़े हुए हैं और यदि वो इसी कॉलेज से रिलेटेड जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनमें सभी को ये समझना जरूरी है कि हमारे संस्थान का गोल क्या है और स्टेप वाइज इम्प्लीमेंटेशन प्लान के ऊपर आप सभी काम कीजिए, अपनी प्रोसेसेस को बार बार रिव्यू करिए, एनुअल रिव्यू आप बहुत जरूरी है, डेटा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करते रहिए जो कि NAAC और सभी एजेंसी, बाकी दूसरी एजेंसीज की भी बहुत डेटा ड्रिवन आजकल सारे फ्रेमवर्क होने लगे हैं, वो ध्यान देते रहिए। और गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं उन पे अपनी नजर रखिए, उनको चेस करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप उसमें किस तरह से फिट हो सकते हैं वो आप कोशिश कीजिए और किस तरह से आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस पे भी आप ध्यान दीजिए। और डेफिनेटली अगर इस तरह से आप एफर्ट लगाएंगे तो जरूर ही आप जो है क्वालिटी की दिशा में कुछ कर पाएंगे और आप जरूर ही NAAC और ऐसी कई क्वालिटी रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पैरामीटर्स में फिट इन हो पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपना जो है टॉक खत्म करना चाहूंगी। Thank you very much for patient listening. I thank all the organizers to having me here for this online e-seminar for the NAAC assessment process. Hope this will be fruitful for all the participants and all the faculty members. Thank you very much. And